UT Ladakh na samsing ngata geography ngata area yodo ya le Kargil niskin na samsing ngata basinda yodo ngata miser yodo ngata te sangme torsajik song pasang tene ngata Ladakh UT na samsing ngata sidet sokspa chosok yot mimang sangma chigdil songte tene ngata I torse phe chigdil chana tene yagar jung nang parla ngata duli not ka despera wa tontak chenmoji ngata dukche se rewa chenmoji gyopin tenna nangwe na borte goma tene Kargil Democratic Alliance chokde khong ngaja boda jate Kargil la ngaje songte apex body ngata thusmi sangme aru ngata sungro sik songpin tena athak chatpin tene sungro ngispao tene ngata le ayong tene apex body ngata host choste tene Kargil Democratic Alliance tene thusmi sangmai ka phep choste tena nangjin diring ngata ika historic ngata tene sokspa jik sokte no tene ina ngata tene consensus eka takchat kachi ngata lenten inna ngata sotpa wanang delte sangme sang tangpo tene sangma tukyuseno goma ngata 6 schedule pia ngata sotpa yotpin tel ting ngata 6 schedule chikpe kane ngata tonta kundu amirak tene te pia tene beauty with legislature ngata to poserak zete te demand bo ngata sangme bot pin apex body chokne diring etene sungdos benanga sangma lotun songte tene tewe ka ngata dicches manok chiazana UT administration ka kazuk chap suljiga tene ngata governance bo ngata dulatpin tewe na mimang sel damska ne thusmi gun matches pe jaste tene tewo ngata mangluk se sirkaji in zarkan bo ngata tewe ka ngata thesum du ngata tewo song pasang dering apex body nang Kargil Democratic Alliance chikdil thundel songte tene state hote demand bo process ngata thak chodle Ladakh ke nanga tene ngata state hote demand bo kurte nam tene ngata markazi sarkar indo home ministry indo khong ngata spera tang se da bora chik tene state hote ngata demand bo process thak chodle nispao Sangba thuk ji sorte ngata domicile laws ekta ngata te jani Jammu Kashmir na ngata domicile laws ji khongska tene Ladakh se nangte sok se domicile law khongche sin jete ngata khonge notification je pinche shos pinle te jane tene apex body shos de ngata Jammu Kashmir el tani ka domicile law khongna te teo ngaje accept choches man jete ngata song ten pin te we jaste tene ngata daksa nyadgal cultures la ngata apex body ka Jungsi tadik pa indo ya UT administration indo recruitment process sangma diring supa cha matu banga talu stepin izugata ngospo chona tene khorang une last michoches bejaste recruitment rules khorang diring supa ngata frame cho mangya nan pin tu nyunji ngunla tene te recruitment rules banga duk teno tene ngaje tewang diring thaksa te ngaje jarse sinle ki Jammu Kashmir e dane ka tene domicile law khona tewo le Kargil ngaje man accept choche man tene dakse tene recruitment wo ngata ngai thu na samsik kangal yot ngata samsik ngata Kargil nang le na yontan tharkel songka ne tene ngata thu un sepi de lasna mibing ches wajaste khong as kangal yot te o selche sepia tene sabthup gokspa tene te recruitment rules sepia tene resident certificate po tene soch hoste tene recruitment process ngata gokspa ngaje shuru cho hoste te demand bo ngaje borsesin tene kaltes iwo laklen na machung na dachi ge na laklen na machung na tene le nang Kargil Democratic Alliance Kargil nang apex body le niska students se chokskor la yongste cha I phe tene ngata chi ngata hartal dharna tang bose nang ngaje street ka binches ngaje thak choten te phe ngaje UT administration na home ministry te ujuat tene lasna metka de silkane thu une kangal bo metkan choche se pia samthup gokspa tene resident certificate ya manna te daksa sangma thukgi sono kata military army nanga indo paramilitary forces na indo police na daksa state resident certificate pia ngata yang card ji yot kata tewe ka tente daksa recruitment rule injik tano te gun so chos terang tene recruitment bo dachi gi nang ko khaprak so khosen je tanga ji man chos tenle sumpao tene sangma thukgi sono statehood thop nang tene ngata la namstok yot no ngata constitutional safeguard nam chukpa ngata mithop tene ngata sakyate thokne indo ngata job reservation e thokne indo tene ngata shesrik skat ige
te gune thok ne indo te ngata fungsko pate nang nantan chache manuk te phia ngatang le nang Kargil Democratic Alliance tang le ngata apex body shock ne sojunga te juwa phulten ki six schedule danika tene constitutional safeguard ngata tene karmet te ngata nyampong ngata tang go zerte te sotpa sukchesin tene ngapa o tene diring tosdu ring la ngata te sperabing ki lenang Kargil kaltes ngata parla zedlen jikchana tene mangchya o tene ngata lok sabha election jane parliament election jane tene ngata I chokse tene ngata zedlen mangpojik charu te phia tene le Kargil parliament constitution nis guro zete te sotpa te wo ngaje demand borten tena nyampo tene sangma tukgi sonok tene ladakh ye UT soso gyur pane phalla tene zombra kongme na Rajya Sabha na ladakh se ngata thusmi mane met pairo teo songpa Rajya Sabha thusmi jiang tene ngata yong go zete te demand borche sin teo te phya khakjan charu che jura ngata political wise matches में जाते ngata दिल्ली का political wise ngata chok sang में matches में जाते तेरे ngata ची दोतों दिक्यो ते उन ngata सोजिंग सुपा ngata थोत थोबा में तो ते वो नंतन चोचे से पे तेरे ये demand ngabo ngaje तेरे दिरी ngaje बोलतें तेरे nga रेवा रख तेरे जगार जुंगे चोक ते तेरे ने होम मिनिस्ट्री अमित शाह कुंदून लगा जे युवा पुलचेसिन kajuk tene Kargil Democratic Alliance yetu brang khong Delhi aboda jate ngata khong nang pojalta salte no tena so Jammu Kashmir na Gupkar Alliance jate chamsi ngata si de party uskong sangma bot te khong sungro sal tene ngata apex body nang Democratic Alliance se thusmi gun samthuk gyokspa Delhi abote tene I sungro spo ngata ken la kherse swia ngaje gyokspa meeting bot hol jiste ngaje jo apulten बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 अगस्त 2021 करगिल और लेह पूरी लद्दाख की तारीख़ में एक तारीख़ी और एक सुनहरा दिन है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह की जॉइंट मीटिंग सेकंड जॉइंट मीटिंग हुई और इस जॉइंट मीटिंग में जो मेन इश्यूज थे काफ़ी बहुत ही तफसील के साथ थर्ड बेर डिलिब्रेशंस हुआ और अल्टीमेटली 4 पॉइंट्स पे कंसेंसस होकर आए और थिप्सन साहब ने अभी आप लोगों के सामने रखे। इन 4 पॉइंट्स में सबसे पहला 2019 5 अगस्त के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल ले आई और स्टेट 2 यूटी में तकसीम हुआ, उस तकसीम के बाद जिस हालात से लद्दाख को गुजरना पड़ा और लद्दाखियों को जिन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लद्दाख के आवाम ने यह महसूस किया कि लद्दाख का मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख को स्टेटहुड देने में है, फुल फ्लेज स्टेटहुड देने में है। और इसीलिए एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से जो आज मीटिंग हुई उसमें ये कंसेंसस हुआ कि पूरी लद्दाख की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, होम मिनिस्ट्री के सामने जो डिमांड रखी जाएगी वो स्टेटहुड फॉर लद्दाख है। साथ ही साथ दूसरी डिमांड आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है जिनके रिक्रूटमेंट का इशू बहुत ही बर्निंग इशू है और जिसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस आए दिन टालता जा रहा है और ये ब्लेम लगा रहा है कि अपेक्स बॉडी की वजह से या इनकी तरफ से सजेशंस ना आने की वजह से हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सके, जबकि सारी लैब्स उनकी तरफ से थी। अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते ही हुए कि इन्होंने रिक्रूटमेंट्स के लिए रूल्स बनाए और उस रूल में जो मेन क्लॉज रखा है वो रेजिडेंट ऑफ लद्दाख का है। लद्दाखियों को कोई भी डोमिसाइल जो भी लाया जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने डोमिसाइल ले आए। हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं लद्दाखियों की जो रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट है जो पहले से था उसी पैटर्न पे, और जिस तरीके से आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस में आज रिक्रूटमेंट हो रहा है जिन 4 सर्टिफिकेट्स को लेकर, उसी पैटर्न पे ही
1 महीने के अंदर पूरी लद्दाख के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन सारी रिक्रूटमेंट, चाहे वो 10,000 पोस्ट हो या 12,000 पोस्ट हो, इमीडिएटली फिलअप किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो ये ज्वाइंट जो हमारी कमेटी है, लेह के एपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस, स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हर महाज पे खड़ी होगी और जब तक रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है, जो कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे, ताकि हमारी जो अनएम्प्लॉयड एजुकेट है इनको बराबर रोजगार के मौके मिले। तीसरी जो बात है, आप जानते हैं स्टेटहुड के बाद भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, जिसमें आपके लैंड प्रोटेक्शंस हो, जॉब रिजर्वेशंस हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं 11 स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के नाम से आर्टिकल 370 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दी गई है। तो हमारी डिमांड्स ये है, स्टेटहुड के साथ साथ लद्दाखियों को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आप 6 शेड्यूल के पैटर्न पे दे दें, आप 370 के पैटर्न पे दे दें, 371 के पैटर्न पे दे दें। लद्दाखियों को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। चौथा जो मेजर इशू है लद्दाखियों के कंसर्न का, आप सभी जानते हैं पूरी लद्दाख के लिए एक पार्लियामेंट्री सीट है लोकसभा के लिए, और इसी एक सीट को लेकर लेह और करगिल के बीच में आए दिन हर 5 साल के बाद ये मुश्किलात खड़ी रहती हैं। इन मुश्किलात को खत्म करने के लिए और हजारों सालों से लद्दाख में मौजूद दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भाईचारा है, इस भाईचारे को मजबूत रखने के लिए एपेक्स बॉडी और केडीए के जो जॉइंट पूरी डेलीगेशंस है, उनकी कंसेंसस ये है कि लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा के और राज्यसभा के बराबर हिस्से दिए जाए। ये 4 मेजर इश्यूज हैं जिस पे एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कंसेंसस हुआ है, और इन्हीं इश्यूज को लेकर होम मिनिस्ट्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ भी हमें नेगोशिएट करना पड़े, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फोर्सफुली इन डिमांड्स को उठा लेंगे। और इन डिमांड्स के जब तक पूरा नहीं होता है, पूरी लद्दाख इस डिमांड्स के पीछे खड़ी होगी और रेजिस्ट करेगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमर साहब, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ। जैसे आप सभी जानते हैं कि करगिल और लेह में एजेंडेस पे जो है डिफरेंस था। करगिल यूटी के ख़िलाफ़ था, सीटेट के डिवीज़न के ख़िलाफ़ था, लेह जो है यूटी के हक़ में थे। अल्टीमेटली जो है यूटी का ऐलान हुआ। यूटी क्या लेके आया, हमसे ज़्यादा आप लोगों ने उसका टेस्ट किया, तजुर्बा किया 2 साल के अंदर। क्या हासिल हुआ, क्या हासिल रहा, उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली जो है हम लोग जो है यानी रेस्टोरेशन 2 पॉइंट पे हम लोग पूरी तरीके से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बना, और काफ़ी डिलिब्रेशन इस डिस्कशन एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के बाद जो है एक तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और उसमें 2 पॉइंट जो है एजेंडे पे हम लोग का यानी इत्तेफाक राय हो गया, बाहर पब्लिक में लाने के लिए और इसके लिए स्ट्रगल करने की। एक जो है रेस्टोरेशन 370 रेस्टोरेशन की बात आई और 35 की रेस्टोरेशन की बात आई। उसके बाद जो है फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख रीजन, फुल स्टेटहुड। तो उसमें अब यहाँ से एपेक्स बॉडी भी तशरीफ़ लाए करगिल के अंदर जो है, वहाँ से इनसे भी बातचीत जो है उस वक़्त भी खुला हमने डिस्कशन किया था। और उसके बाद इनकी दावत पे जो है एपेक्स बॉडी की दावत पे हम कल यहाँ पे आए। तो आज दिन भर जो है पूरी तरीके से हर एक साइड को सुना, हर एक ने बात रखी, अपनी बात जो है खुला जो है हर एक को खुली जहन से, खुली दिमाग से जो है, और पूरा तमाम जितने भी मेंबरान हैं उन सब को जो है अपनी बात रखने का यहाँ मौका फराहम किया।
और हर एक ने अपनी बात रखी। अल्टीमेटली जो है हम लोग एक बात पे जो है इत्तेफाक हो गया। एक ये है जो 35 है और 370 है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सब जुडिस है, तो उसमें डिसीजन कब आएगा। लेकिन ये भी इत्तेफाक राय हो गया कि जब भी डिसीजन आएगा वो सब पे लागू होगा, लेवी भी लागू होगा, जम्मू पे भी लागू होगा, कश्मीर पे भी लागू होगा। ये इस पर भी कंसेंसस हो गया। मीनवाइल जो है इस बात पे भी इत्तेफाक राय हो गया कि मीनवाइल हमको बाकी मसलन अभी विद लेजिस्लेचर यूटी या कोई और बात है उन सब को छोड़ के जो है हम फुल स्टेटहुड के लिए मिल के जो है आगे बात रखेंगे। और आगे अगर हमें एजुटेशन चलाने की ज़रूरत है एजुटेशन चलाएंगे, और बात करने की ज़रूरत है बात करेंगे, मतलब जिस किस्म की भी मुहिम की ज़रूरत होगा वो मुहिम चलाएंगे। और क्यों जो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि अभी आज हमारे जो है बीजेपी के गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी है आपके ले में और सेंटर के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट, उनका कहना है, उनका फरमाना है, उनका हमेशा जो है ये एक किस्म का जो है मतलब यानी जिसको हम कह सकते हैं तशहीर कर रहे हैं कि जो भी लद्दाख के लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, कुछ भी हो, हम लद्दाख के लोगों की मांग जो है डिमांड जो है वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम बाकी सब को छोड़ के जो है हम फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। कुछ भी पूरे में थे कि वो जो वादा कर रहे हैं या जो कह रहे हैं उस पर उतरेगा, उसी के लिए हम लोग इत्तेफाक हो गया है। बस मैं ज़्यादा और बातें नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे साहब ने बोला और आपके करबले साहब ने हमारे के करीब उनको दिया। एपेक्स बॉडी टीवापी लेंगोन लाता 6 शेड्यूल जतना होते ना तेतिना आता यूटी विलेज देता तार स्टेट फूड तेनेता यू मता मीमास नम पारlang मिंडे सोता माता मीमास ना yang टीवा लांसेस मान ऑल एपेक्स बॉडी मान गिरेन सोंग करते तेव ngaji discussion chaza ngaji dun la yo pintes pera ole yejera zik sa zata goma ngata 6 schedule ko nokchi ko man me ngata teltine ngata UT with legislature sarkale te 6 schedule te kang khato ajak sa ngata empower ma achu che ngata hospital tongsteno diri ngata full state hu te te sang ma empower che hospital tongsteno nga te ha gwa bi rakle ladak se mimang sta te na chi ngata nam stok sken chi juna ngata diri 6 schedule zer hosel domba chi su ngata UT with legislature zer hosel domba chi su te sang ma duk teng kaltes ngata pura daksangata UT setup dut gyurte ngata khaptak songte lo ni saki nokle dirin supa UT administration taru supa ngata kazuksia la so osin te no macho nokle tewa thongte dirin majbur songte ngata le majbur songte ladakh UT chige phantok pia la UT na dukani mimang sangme phantok se pia ngata mi chik tang ni se phantok man roina सीधे थोड़े फंतों में क्या जाति फंतों में क्या ले लद्दाख से यूटी फंतों से फेगा ngata full state hude ngata demand choste no kao thopna tene ngata yang samchi ngata thasum yot pile te sangma ngata selche sinok te sangma mitkan chache sino nyampo tene ngata constitutional safeguard nyampo hosin zero full state hud thopna ngata hosin zertero chejuna te o matopna full state hud thopna tene ngata sakya de thokne ngata chiga thasum yot kakle tene so ngata job reservation no thokne thasum yot kakle culture skat ige te gun sunsko be tokne ngata thasum yot kakle te phya ngata constitutional safeguard ang 6 schedule tar se gato posin zate demand chos pasang ngata demand ma choches mane new amit kakle song pasang te na nga rewa rak ki ladak se mimang sela chang thasum miyo balki ngata ri wa pura chosko zadin sam chese ga jere boin एपेक्स बॉडी प्लस केडीए या इससे पहले आप जब एमएचए से आप लोगों का वार्तालाप हो गया दिल्ली में तो ए से एपेक्स बॉडी गया और ए से केडीए गया, तो अगला जो है ऐतिहासिक जो आज फैसला हो गया, अगला जो आप सेंटर से बात होगा किस नाम से होगा प्लीज? ये ज्वाइंट कमेटी हमारी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमएचए के ही रिकमेंडेशंस हैं कि एपेक्स बॉडी एज वेल एज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी। आज के बाद जो भी बात होगी ये ज्वाइंट कमेटी बात करेगी और इसी ज्वाइंट कमेटी को ही लेके आपके एमएचए हो या पीएमओ ऑफिस हो किसी से भी बात करनी हो ये ज्वाइंट कमेटी बात करेगी। कितने मेंबर्स जाएंगे सर इसमें? अब ये मेंबर्स अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, ये डिपेंड कर लेता है कि वो कितने मेंबर्स को अलाउ कर लेते हैं एमएचए। जितने मेंबर्स को अलाउ कर लेते हैं, हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम मेंबर्स को वहां पे जितने भी सेक्शंस ऑफ
शेड ऑफ Society से। सोसाइटी से, उन सबको वहाँ पे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन फाइनल जो डिसीजन लेना है वो MHA को लेना है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मरकजी सरकार का बातचीत हुआ तो उसमें उन्होंने होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला हुआ कि फर्दर डिस्कशन के लिए एक ज्वाइंट एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि होम मिनिस्ट्री की कमेटी होगी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि एपेक्स बॉडी की तरफ से 2 नॉमिनेशंस होंगे, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 2 नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे, बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और करगिल के जो चेयरमैन है CEC वो एक्स ऑफिशियो वो मेंबर होंगे। तो उस पर हम लोगों को एतराज़ इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं इस तरह की बातचीत में जितना भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी शामिल हो। इस वजह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो अभी मीटिंग की है उन्होंने 4 नामों का सुझाव रखा है। हम भी 4 या 5 नाम सुझाव रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है होम मिनिस्ट्री इसको करेंगे। और जो मीटिंग में जाएंगे वो ज्वाइंट डेलीगेशन होगा, एपेक्स बॉडी के नाम से जाएगा, KD है जो KD के नाम से जाएगा, लेकिन ये ज्वाइंट कमेटी के मेंबर के हिसाब से जाएंगे। सर क्या ये ज्वाइंट मीटिंग शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करने जा रहे हैं, चाहे हम स्टेटहुड की बात करें, 6 शेड्यूल की बात करें, बाकी जो 2 आपने पॉइंट्स बताया, तो उसको स्ट्रगल आप किस तरह से करने जा रहे हैं? क्या ज्वाइंटली आप स्ट्रगल कंटिन्यू रखेगा? बिल्कुल ज्वाइनली करेंगे। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, आज की मीटिंग ही इसकी शुरुआत है। आज 1 अगस्त 2011 आज शुरुआत है, इसके 2021 इसके बाद जितने भी इश्यूज हैं जो अभी मेन हमारे इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए 4 इश्यूज हैं, उसके अलावा भी लद्दाख से रिलेटेड कोई भी इश्यूज उठे तो यही ज्वाइंट कमेटी इन इश्यूज को हाईलाइट करेगी। प्रोटेस्ट करना पड़े, धरना देना पड़े, शट डाउन करना पड़े, पूरा रोड पे आना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ज्वाइंट कमेटी कर लेगी। सर क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स को बाहर रख के, जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं कि लद्दाख के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो पॉलिटिक्स को बाहर रख के लद्दाख के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल जारी रहेगा? डियर, आपको गलतफहमी ये है, ये खुद ही पॉलिटिक्स है। ये जो हम डिमांड्स कर रहे हैं, नहीं प्लीज आप थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये पॉलिटिक्स हटा के जो आप बातें कर रहे हो ना, आपका लद्दाख के लिए स्टेटहुड ये पॉलिटिकल इशू है, आपके लोकसभा के लिए सीट ये पॉलिटिकल इशू है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स ये पॉलिटिकल इशू है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ये पॉलिटिकल इश्यूज है। तो पॉलिटिक्स को आप हटा नहीं सकते हैं। हाँ, आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लद्दाख के लिए आपको उठाना है। इसीलिए ये सारा जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशो, स्टूडेंट यूनियंस की जितने भी आपको यहाँ पे एक गैलेक्सी दिखाई दे रहा है, इन सभी उससे ऊपर उठ के लद्दाख के वेलबींग के लिए, लद्दाख के वेलफेयर के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंट्स के लिए उठिए। सर एक चीज और, आज का जो आपका जितना भी मीटिंग में जो बात चला, खासकर जो पार्टीज जो है, जो रूलिंग पार्टीज जो है, अभी ये स्टेज जो है एक ऐतिहासिक स्टेज है, तो इसमें हमें कहीं रूलिंग पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखाई नहीं दे रहा, चाहे लेह से हो चाहे कारगिल से हो, तो इसके पीछे क्या हुआ है थोड़ा आप बताएंगे? क्योंकि मैं इसमें खुलासा करना चाहूँगा। इसमें अभी आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो शामिल थे और उनको कुछ और कहीं जाना था, वो चले गए। उसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब वो भी खुद थे और उन्होंने इस मीटिंग को खिताब भी किया, क्योंकि 12 बजे उनका कोई और मीटिंग फिक्स हुआ था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज़ का वो मामला, उसके लिए मीटिंग बुलाई थी उन्होंने, तो उनके लिए जाना पड़ा। जब कंक्लूड हुआ उस समय वो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो आश्वासन दे के गए कि जो भी फैसला होगा हम इनके साथ हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसमें शामिल होना था, इसी वजह से हमने सैटरडे को रखा, लेकिन उनका प्रायर कमिटमेंट होने की वजह से वो नहीं पाए, उनकी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिला। तो अब जो ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, सबका आइडियोलॉजी अपने अपने बाप है, लेकिन जो KDA के मेंबर है या एपेक्स बॉडी के मेंबर है, लद्दाख के मुफाद में, लद्दाख के कॉमन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडा को एक तरफ रखते हुए इन इश्यूज के
सहमत में सब ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को रख के जेडीए की तरफ से और एपेक्स बॉडी की तरफ से सरकार के साथ जिद्दोजहद करने का फैसला किया है। तो इसमें इश्यू तो पॉलिटिकल है, लेकिन अपने पॉलिटिकल हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे एजेंडा हो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट ना करता हो ना करता हो, लेकिन चूंकि ये कंसेंसस से हुआ तो सब एक्सेप्ट करते हैं इसको। एक्चुअली कारगिल और लद्दाख कभी भी एक एजेंडा पे एग्री नहीं कर रहे थे। इस बार जो आपने कारगिल और लेह कारगिल और लेह का भी एक एजेंडा पे एग्री नहीं कर रहे थे सर। आज जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने रखा है जिसपे स्टेटहुड पे आपने माना है, तो इसको रोड मैप कब बनाया जाएगा? क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट है, सेफ गार्ड है सर। इस तरह कितने मीटिंग्स और रखे जाएंगे और कैसे इस तरह को इस बात को जो है आगे लिया जाएगा? डियर, ये एक शुरुआत है। आप ये मान के चलें कि एक तारीखी कदम है कि पहली बार इतने डिफरेंसेस के बावजूद, इतने फासले के बावजूद पूरी लद्दाख के, चाहे आप करगिल के ले लें चाहे आप लेह के ले लें, सारी लीडरशिप आज इकट्ठी हो गई और कंसेंसस से ये जो 4 एजेंडा है जिसमें आपके जो 2 पॉइंट्स है इसी में एड्रेस किया गया है। तो ये रोड मैप आज 1 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई है। तो बहुत खूबसूरत, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें जो ये ज्वाइंट कमेटी बनेगी, एक खूबसूरत रोड मैप लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के लिए बना के लेके चलेगी। और हम सभी लद्दाखी वासियों से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि पूरी तरह से भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें अपनी इस ज्वाइंट कमेटी पे। आपको कभी भी ये कमेटी लेट डाउन नहीं करेगी। देखिए, अभी अभी खुलासा हुआ है जो 4-5 इश्यू पे कंसेंसस हुआ है, उसको लेके हम लोगों ने जिद्दोजहद करना है। तो उसमें से ये भी डिस्कस हुआ हमें, स्टेटहुड का जो मामला है वो लॉन्ग रन हो सकता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं होता कई दौर की बातचीत चल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसको मद्देनजर रखते हुए सेकंड जो हमने मुद्दा रखा है उसमें यह रखा है कि डोमिसाइल लॉ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 1 महीने के अंदर, इसीलिए हम जोर दे के कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आप पीआरसी को, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो या जो भी ऐसा कानून डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई कैंडिडेट जो है वो अपना लद्दाखी रेजिडेंट होने का प्रूफ दे सके, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहते हैं। तो वो तो हम इसीलिए अर्जेंसी कर रहे हैं, वो 1 महीने के अंदर ना हो तो हम जिद्दोजहद करेंगे। तो ये इसीलिए रखा गया है कि जो डिमांड लंबे अरसे तक भी हमें जिसके लिए जिद्दोजहद करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार होंगे। लेकिन जो इमीडिएट जो है हमारे लिए प्रायोरिटी जो है, जो गवर्नमेंट कर सकती है आसानी के साथ, उसके लिए तो हम बहुत जल्दी करने के लिए हम इस पर जोर देंगे। इसमें यह भी है, मतलब यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल या आपके नज़रियात या आपके डिमांड वगैरह में जो है डिफरेंस था। अब ये सब एक प्लेटफार्म पे आके जो है हमने सिर्फ एक डिमांड, बाकी तो उसके साथ साथ आ जाएगा। एक डिमांड के पे जो है हम सब इत्तेफाक हो गया। इसीलिए हो गया कि खित्ते लद्दाख जो है एक डिमांड पे अगर इकट्ठे होकर जो है सेंटर से मांग करेंगे, क्योंकि सेंटर बार बार कह रहा है कि लद्दाखी जो पहले मैंने अर्ज किया, लद्दाखी जो भी डिमांड करेंगे हम फुलफिल करेंगे। क्योंकि आज तक हम एक डिमांड पे पूरे जब इत्तेफाक नहीं था, इतिहाद नहीं था, आज हम एक डिमांड पे जो है एक मुतालिबे पे सब एक हो गया। एक हो के एक आवाज़ होगा, यहाँ पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या आपके जो है एपेक्स बॉडी हो, एक आवाज़ दे देंगे फुल फ्लेज स्टेटहुड की जो है। तो इसलिए हमारी बात पे वजन भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर जो है यहाँ पे जल्द अज जल्द कोई डिसीजन भी आ जाएगा। ये हम पूरी उम्मीद रखते हैं। सर मेरा सवाल है केडीएस, प्लीज अब आपके तो 3 सवाल हो। सवाल है। हाँ तो देखिए, अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है, करगिल में बीजेपी, जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी है वो का भी शामिल नहीं हुआ केडीए में, और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी भी शामिल नहीं हुआ। इस पे आपको क्या कहना है? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे करगिल के बीजेपी हो चाहे हमारे करगिल के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भाई हों, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इन्हें इन्विटेशंस दी गई है, 3 बार इन्हें बुलाया गया है। इसके बाद भी ये अपने रिजर्वेशंस इन्होंने शो कर लिया। अब आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई लैप्स नहीं रहा, कमी नहीं रही है। इसीलिए हमने डे फर्स्ट से कोशिश की है कि एवरी शेड ऑफ कम्युनिटी को साथ लेके चले। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी डिसीजन ली जाएगी, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो सारे कम्युनिटीज के लिए
लद्दाख के सारे वासियों के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे अभी मेरा स्लिप ऑफ टंग से शायद लद्दाख और कारगिल निकल गया। कोई बात नहीं, तो ये निकल जाती है। क्या उम्मीद लोग लगा सकते हैं कि लद्दाख की ही बात हो और लद्दाख पूरा उठ के यूनिटी के साथ इस पे काम करेगी? क्या ये भरोसा आप लोगों को दिला सकते हैं? स्टेट ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा लद्दाख है, राइट फ्रॉम जोजिला अप टू चुशुल। आपका तुर्तुकथां से लेकर उसमें हम एक यहाँ बताना चाहते हैं तक। कारगिल के जो बुद्धिस्ट है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि जो ले के एपेक्स बॉडी का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है। तो जब ले के एपेक्स बॉडी ऑलरेडी इसमें शामिल है, उनका एजेंडा भी है, तो मेरे ख्याल में हम सब चलिए, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।